Let everybody come, then we'll start with our class. And all right. Chalo, till the time, let me ask the tables. Okay. Jagraj, where are you? Yes. Jagraj, 99 are. Yes, ma'am. Everybody sit nicely and study. Notebooks हाथ में होनी चाहिए. आराम से लेट के पढ़ रहे हो बेटा. You are just sit and study. You should have the notebooks with you. Sit nicely. All right. 19 nines are. Yes, Jagraj. Have you learned the tables? Still thinking. Ma'am, 181. Huh? Ma'am, 181. Wrong. Learn the tables, beta. Jatin. 17 sevens are. 17 sevens are. Huh? Ma'am, 119. Yes. Fateh, 18 fours are. Yes, Fateh, 18 fours are. Ma'am, 2 minutes. हाँ? मैं बता रहा हूँ. तो ये तो आपको लिख के 72. 18 fours are. 72. बता रहा हूँ. Where were you? Sit nicely and study. Kritika, 16 eights are. Ma'am, 128. Okay. Good. Zainab. Yes, Zainab. Are you there? I'm not able to unmute you. वहीं से अपने पास से unmute करो बेटा. From your side. Zainab. Everybody keep the video on. Yes, Zainab. Not able to unmute you. चलो ठीक है. Nikki. 15 fours are. Okay. Still thinking. Lakshita. Ma'am, 60. 60, right. One more for you. 16 Yes, ma'am. nines are. Ma'am, 16 nines are. 16 nines are. हाँ. You are thinking a lot, taking a lot of time. जल्दी से quick answer it should be there. चलो. Anushka. Wait, let me unmute you. Yes, Anushka. 15 nines are. Ma'am, 15 nines are. Ma'am, 135. 135, 5. right. All right. Udayveer. Udayveer. Again, you have muted yourself and video off also. If you don't want to study, तो फिर आते क्यों हो बेटा? Yes, Udayveer. Answer me. फिर again you have muted yourself. Yes, ma'am. Now tell me 17 sixes are.
पढ़ नहीं रहे हो बेटा, है ना? यू आर नॉट स्टडिंग एट होम. लर्न द टेबल्स नाइसली. मैम आई नो. हाँ तो बोलो जल्दी. मैम 17 6 मैम कैन हाँ मैम लॉट ऑफ टाइम. बोलो. चलो मल्टीप्लाई कर लो तुम. करो अभी करो. You should learn all the tables by heart. 70 बोलो बोलो. मैम 17 6 कितनी बार बोलूं? 17 6 Still thinking. Learn it by heart. Shubhraj. मैम 102. हाँ नहीं, लेकिन अब तुम्हारे लिए another question. All right. 18 nines are 99 10. मैम 162. right. Yes, Priyansh. Okay. Swastik, are you there? Daksh, keep the video on, beta. Daksh. Everybody keep the video on. Swastik beta, tell me. Yes, ma'am. आप बताओ. 17 fours are. 74 are. Ma'am 68. Okay. Ma'am 60. 60. 60 or 68? Ma'am 68. 68. ठीक है. Priyansh. All right. 19 fives are. Ma'am 19 5 are 95. All right. Very good. Bilal. 19 sevens are. 37. हाँ Ma'am 117. बस सारे बोल दो, और कोई भी रह गया? Is something left? 19 का टेबल याद है. Learn the tables by heart. नहीं पढ़ेंगे टेबल लर्न करो अच्छे से. 19 का याद ही नहीं. This is very bad. बिलाल, पूरे टेबल्स 20 तक लर्न हो जाने चाहिए. Next I will ask of 21 also फिर 21 22 like this. सारे टेबल्स लर्न करो. Learn it by heart. कहीं से पूछूं, you should give the answer. चलो here. Now पता ही हो गया. दक्ष. All right दक्ष. Unmute from your side. हाँ, now speak. 19 eights are. 152. 152. हाँ ठीक है. Good. All right. चलो. We'll move on to our divisibility rules, right? We were studying divisibility rules. वही पढ़ रहे थे. तो अब हम उसी पे चलते हैं. And the divisibility rule of, पहले तो मुझे एक recall करा दो. What are the divisibility rules?
and which divisibility rules we have studied. उन्नति आप present थी in my last class? नहीं थी, है ना उन्नति? Yes, ma'am. तो irregular क्यों होती हो इतनी? Why you are not regular? अच्छा उन्नति मुझे टेबल बताओ. Now you are present and tell me the table of all right. 14 8s are 14 8s are 14 8s are 14 8. don't multiply it, ठीक है? This is very bad. You have not even learned the tables. Ma'am, Learn the I tables, forgot. everybody. Every one of you. You should learn the tables. अच्छा उन्नति अब ये बता दो. मैं बता देती हूँ. 14 8s are 112. ठीक है? और टेबल लर्न करो. कल फिर आपसे पूछूंगी. Again Ma'am, I I'll ask. forgot. Forgot? Ma'am, I have learned till 19. अच्छा मेरी बात सुनो. You were there in my last class? नहीं. Ma'am, तुम्हें पता है मैंने क्या करवाया था? होमवर्क तो देखा होगा. जो होमवर्क आता है, आर यू सीइंग दैट होमवर्क? yes, ma'am. हाँ तो उसमें मैंने लिखा था मैंने क्या कराया था. क्या कराया था कुछ पता होगा? होमवर्क असाइनमेंट आते हैं ना. आर यू सीइंग दैट होमवर्क असाइनमेंट की कब कौन सा होमवर्क आया है? ऑलराइट. तो मुझे बताओ मैंने करवाया क्या था. मुझे बस इतना बता दो. व्हाट आई हैव डन इन माय लास्ट क्लास. हबीबा अभी आपसे बात करती हूँ 2 मिनट. मम्मी ने क्या सेंड किया था? बताओ व्हाट आई हैव डन. नहीं पता निक्की. व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लास. Ma'am, I don't know. Don't know. Very good. All right. Now, Soumya, what we have done in our last class? Ma'am, we have learned divisibility rules. Divisibility rule of 2, 3, 6, or one more. 8. Ma'am, 9. 9. Right. Chalo, ठीक है. Now, Arnav, what is the divisibility rule of 2? Ma'am, in the divisibility rule of 2, the number which have 0, 2, and 6, ma'am, 4, ma'am, etc. are the factors of 2 and divided by 2. ठीक है. Good. Tejas, divisibility rule of 3. Ma'am, the sum of the digits. All right, हबीबा आपसे बात कर लेती हूँ पहले. Excuse me, ma'am, I want to say something. बोलो बेटा. Ma'am, when I was checking the homework on the day, ma'am, when I clicked on English work, ma'am, then it was coming that divisibility rules of 2, 6. Sorry, 4 and I'm not 9. able to hear. मैम जब क्या कहते हैं आपने डिस्क्रिप्शन था ना क्लास वर्क का, तो फिर मैम उसमें जब मैंने इंग्लिश वाले पे क्लिक किया मैम तब आ रहा था कि डिस्क्रिप्शन में divisibility rules of 2, 3, 6 and 9. इंग्लिश में थोड़ी आएगा, मैथ्स में ही आएगा. No ma'am, it was coming in English. चलो तुम्हें पता तो चला ना. कोई बात Yes. नहीं, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. वैसे मैंने मैथ्स में ही किया था. ठीक है. ऑल राइट. कुशाग्र is saying my also. अच्छा ऐसा था. Maybe my mistake. I have clicked on English. है ना? Maybe this has happened. All right. चलो. तो I was on 3. ठीक है. कुशाग्र, tell me divisibility rule of 3.
उन्नति आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 वैसे? Yes, ma'am. मैं थोड़ा सा पता है. कि 3 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होता है? शॉर्टकट. वैसे तो हम उसे डिवाइड करके देखेंगे. इट्स अ वेरी लॉन्ग मेथड. डिविजिबिलिटी रूल का फायदा क्या होता है? सो दैट वी कैन सी द नंबर एंड वी कैन टेल क्विकली कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. अगर कोई नंबर प्लस करके 3 की टेबल में आ रहे हैं तो वो वेरी गुड. ठीक है. सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 लाइक 29, 273. ठीक है. तो 2 plus 7 plus 3 is what? 12 and it is divisible by 3. ठीक है. Some of the digits should be divisible by 3. Very good, Unnati. Next, pay attention. All right. Ashwin, divisibility rule of 6. Divisibility rule of 6. Ashwin. चलो, he'll take lot of time. Saksham, divisibility rule of 6. Ma'am, if the number is check whether the number is divisible by 3 and 2, then All right. हाँ. बोलो. then it is divisible by 6. If the number is divisible by 2, not 3, then it is not divisible by 6. ठीक है. For the divisibility rule of 6, the number should be divisible by both 2 and 3. दोनों से divisible होना जरूरी है. ठीक है. किसी अगर एक से भी divisible नहीं होता, like 2 से है 3 से नहीं है, तो it will not be divisible by 6. Shrey, divisibility rule of 9. What? Yes, Shrey. Your voice is not coming. Huh? Your voice is not coming. My voice is not coming. You're not. I'm not audible to you. Everybody, just show me. Just thumbs up if I'm audible. Maybe at your side, at your end, the connectivity issue must be there. Network problem hogi koi. Now, are you able to hear me? What is the divisibility rule of 9? 9. हाँ. Ma'am, it should be divisible by 3. 3. The number is divisible by 3. No. Yes, Anvesha. If the addition of the number is divisible by 9, then whole number is divisible by 9. ठीक है. The sum of digits should be the multiple of 9 and the number should be and the number is divisible by 9. ठीक है. Now we'll study some more divisibility rule. ठीक है. Like we have already studied in our class 5. ठीक है. मैंने class 5 में भी बताया है. याद होने चाहिए सारे वैसे तो. You should learn. Ma'am, you are audible but slow. But okay. ठीक है. Yeah, is saying. Divisibility rule. Divisibility rules. All right. We have already studied 2, 3, 6 and 9. Now we'll study divisibility rule of 5. Right? अब 5 का divisibility rule you all know. Okay? अगर किसी नंबर के एंड में, ऑलराइट, वंस प्लेस में 5 और 0 आता हो, then the number is divisible by 5. ठीक है. If the number
which has either 0 or 5 in its ones place. ठीक है, if a number is having 0 or 5 in its ones place, then the number is divisible by 5, right? For example, 3, 4, 5, 6, 0. ठीक है, now is this number is divisible by 5? क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है? इट इज डिविजिबल बाय 5, सुनिधि? यस यस Yes, ma'am. यस, व्हाई? Because in this there is 5 and 0. हाँ, देयर इज अ 0. ठीक है, वैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 इज द नंबर, ठीक है, द नंबर विच हैज either 0 or 5 its ones place पे, then the number is divisible by 5. तो अब ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है? यस. ठीक है, नाउ अनदर नंबर 56,789. ऑल राइट, दिया, is this divisible by 5? Unmute yourself, Diya. All right, you are not able to unmute. Chalo, ठीक है. I'll ask from somebody else. Kush, Yes, ma'am. this number is divisible by 5. Ma'am, no. Ma'am, because No. its end is with 9. Ma'am, it should be 0 or 5. Exactly. It should be 0 or 5. ये जो ones place है, that is 9 की जगह 0 या 5 होता, then the number is divisible by 5. Next, divisibility rule of 10. ठीक है, divisibility rule of 10 is if the number which has 0 at its ones place. ठीक है, the number which has 0 at its ones place, तो वो नंबर क्या होता है? It is divisible by 10. ठीक है, 5 के लिए 0 और 5 दोनों में से कोई एक हो, then the number is divisible by 5. लेकिन 10 के लिए the number which has 0, ठीक है, at its ones place, then the number is divisible by 5. For example, 20,450. Is it divisible by 5? 10, sorry, Hansika. Yes, Hansika. Is this number is divisible by? Is this number is divisible by 10? Yes, ma'am. Yes, because it has And because it has 0, it is ones place. ठीक है, very good. Now comes divisibility rule by 4. ठीक है, divisibility rule by 4. अगर कोई नंबर है with 3 or more than 3 digits, it is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digit is divisible by 4. For example, मैंने नंबर दिया 34,832. Then you have to check. ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है? लास्ट की 2 डिजिट. ऑलराइट, फॉर 4 के you have to check last 2 digit. If the numbers last 2 digit is divisible by 4 की टेबल में आते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं, तो ये होल नंबर, पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से. ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाय 4. ऑल राइट, अब 32 4 की टेबल में आता है? यस.
ठीक है, then the number is divisible by 4. 34,832. All right, one more. 26,48,128. All right, now tell me, is this number is divisible by 4, Priyansh? Yes. 4 से divisible होगा ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Why? Yes, ma'am. क्यों होगा? And because the last two digits are the multiple of 4. Very good. Last 2 digit is divisible by 4. Last की 2 digit check करते हैं. बस 4 से divide होनी चाहिए. Then the whole number is divisible by 4. Right. All right. Next example. Next example for you is Brahmjot and Sarabjeet. चलो एक और एग्जाम्पल आप लोग के लिए. अब आप मुझे ये बताना है इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट. ठीक है, 1 2 6 1 2, that is 12,612. Yes, Brahmjot, this is divisible by 4 or not? Voice is not clear. चलो छोड़ो. Ma'am, it is divisible. Yes, it is divisible. ठीक है. Next. Now, all right. Divisibility rule by 8. ठीक है, अब 8 का है. 4 के लिए तो we have to check the last 2 digit, and 8 के लिए what we'll check? The last 3 digit. For example, 9216. 9216. Now you tell me, is this divisible by 8? हमने 8 के लिए which place we have to check? We have to check the last 3 digit of the number. If the last 3 digit of the number is divisible by 8 की टेबल में 8 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, then तो this number is divisible by 8. अब आपको क्या चेक करनी है? लास्ट 3 digit. All right, the divisibility rule of 8. You have to check the last 3 digit. Now 8 से divide हो रहे हैं 216. 8 ones are 8, 8 twos are No, 16. ma'am, it is divisible. So 21 minus 16 is 5, 6, 8 sevens are 56. All right. So that means this number is divisible by 8. Why? Because last 3 digit is divisible by 8. 8. All right. Next example for you. Next example is, chalo, 6686, 6,686. Yes, Yuvraj. You tell me. उसके बाद I'll ask from Shubhraj. Yuvraj, बताओ, 6,686. Is this divisible by 8? Ma'am, 1 minute. Just check. अदनान is there. केशव, जबजीत, आपसे पूछती हूँ अभी. Yes, it is not divisible. It is Not divisible. Yes, it is not divisible. Why? Because the last 3 digit is not divisible by
8. So no, this is not divisible. ठीक है, तो 8 के लिए we have to check the last 3 digit of the number. Now comes the divisibility rule by 11. ठीक है, we have studied about divisibility rule by 8, 4, 6. ठीक है, अब let me ask one thing. Krishna, are you there? Krishna, Aura, everybody, ये लास्ट वाले सारे अपनी वीडियो ऑन रखा करो. Aura, Jabjeet, Keshav, Abhijit, Aura, tell me the divisibility rule of 8. Yes, Aura, are you there? Keshav. Yes, Keshav. Dashmeet, everybody, keep the video on. Aksh Batla. Keep the video on, everybody. Who is saying may I tell? All right. Diya, DIY8. Diya. Tell me, divisibility rule of 4 and 8 both. Ma'am, divisibility rule of 4 and 8 both. दोनों के divisibility rule बताओ. Repeat करो जो हमने अभी पढ़ा था. I mean 4. The divisibility rule of 4 is that the number should be divisible. The last 2 digits of the number should be divisible by 4. ठीक है. And the last 3 digits should be divisible by 8. Okay. Okay. Now, Siddharth Singh, is it clear? Yes, ma'am. Chalo, let's move on to another divisibility rule. That is 11. Dipanshu, do you remember what is the divisibility rule of 11? Yes, ma'am. Unmute yourself. हाँ, बोलो बेटा. Ma'am, the sum of the odd digits and the sum of the even digit in which the number is placed should be 11 or 0. हाँ, should be the multiple of 11 or 0. कैसे? अब देखो. All right. The number is 308, for example. ठीक है? अब sum of the digit at the odd places and sum of the digit at even places. ठीक है? Odd places क्या है ये? First, second, 3. ठीक है? Third. अब first और third पे कौन सा नंबर है? ये odd places तो हुई. First and third पे the number is 3 and 8. इनका sum 3 plus 8 is what? 11. अब इवन प्लेस पे हमारा क्या है? सेकंड प्लेस पे, यानी सेकंड प्लेस हमारी इवन प्लेस होती है. इवन प्लेस पे हमारा 0 ही है, तो इसका सम और कोई डिजिट नहीं है तो सम होगा नहीं. अब इन दोनों का हमें क्या लेना होता है? डिफरेंस. 11 minus 0 is what? 11. Difference क्या आया? 11, which is a multiple of 11. That means this digit is this number is divisible by 3. अगर 11 आए difference, 11 या 11 का multiple आए या 0 आए, all right. Then तो the number is divisible by 11. Next number is 1331, right? Now odd places. पहले sum of the digit at odd places करो. Odd places पे जो number है. This is first place, second place, third place,
and fourth place. Odd places कौन सी हो गई? First and third. That means 1 and 3. इन दोनों का सम करेंगे. 1 plus 3 is 4. And sum of the digit at even places again 4. Is divisible by 4. ठीक है. Ma'am, it is not divisible. Well, it is not divisible. So 4 minus 4 is 0. That means it is divisible. मैंने क्या बोला? 11 का multiply आए या 0 आए? तो number is divisible by what? 11. Right? आपको क्या करना है? Sum of the digits at the odd places and sum of the digit at the even places. ठीक? And फिर दोनों का difference निकालेंगे. All right. And if the difference is a multiple of 11 or a 0, then to the number is divisible by 11. All right. Shreya, repeat. Yes, ma'am. Repeat divisibility rule of 11. Ma'am, the sum of the odd numbers, Odd place digit. odd place digit, and even we yeah. have to minus like the हाँ, difference. you have to take out the difference of that. ठीक है. First you have to sum the digit which is at the odd place, and then you have to sum the digits which is at the even place. ठीक है. दोनों का sum निकालने के बाद उनका क्या निकालेंगे? Difference. अगर difference में we have 0 आता है या 11 का multiple आता है, then the number is divisible by 11. 11. All right. Bharyal, can you repeat? Yes, Bharyal. He's freezed. बोलो. Adnan. Ma'am, हाँ, बोलो Bharyal. Repeat the divisibility rule of 11. मैम आपकी वॉइस कट रही है. All right, ठीक है. Adnan. Again, my voice is cracking or what? No, ma'am. तो बताओ फिर. Ma'am, if the odd place digit number, ma'am, the odd place digit number and the even place digit number, ma'am, first we have to take the sum and then we Yes, have to. Adnan is not difference telling. the- Who is telling? ये अदनान नहीं बता रहा. कौन बता रहा है? प्रियांश बता रहा है, right? Yes, ma'am. तो आप अदनान हो? I'm asking from Adnan. Adnan को unmute किया. All right, I have asked lot of things from you. चलो, आप ही बता दो. We have to wind up our class then. Yes. Priyansh, repeat. Ma'am, if the odd place digit number and the even place digit number, ma'am, first we have to take the sum, and then we have to difference the both number. All And right. ma'am, if the number is divisible by 11, ठीक है. Aksh Batla, now you are there. Why you are keeping your video off? Video off क्यों होती है? Keep the video on. ठीक है? हमेशा on रखा करो. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है. मैंने कौन कौन से divisibility rules पढ़ाए थे अभी बताओ फिर मुझे सारे. Ma'am, 3, हाँ. 4, 8, 12. 12 तो मैंने पढ़ाया ही नहीं. 5. हाँ. चलो. ठीक है. Pay attention. Ma'am. Keep the video on and listen each and everything. A question पूछती हूँ then answer also. It is beyond. We have exceeded our time limit. It was our class till 10:35. It is already 10:39. So okay, bye everyone. We'll meet you in our next class. ठीक? Okay, ma'am.
Bye. Bye. Hello class. Hello. Hello. If I am audible to you, please give me a thumbs up, all of you, please. If you are hearing me with a clear voice, and just please जल्दी से thumbs up पर क्लिक कर दो. Yes, Lakshita is there. Lakshita. Yes, sir. Yes, Lakshita. Actually, your mother want to talk with me. Is there any confusion or is there any problem? Sir, my mother is with my brother in the meeting. I'm calling her. No problem. I will call her later. Okay, sir. हाँ, अभी हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? तुम्हारे छोटे ब्रदर की मीटिंग चल रही है? Yes, sir. ठीक है, क्लास है या मीटिंग है? Class. ओके, ठीक है। तो बेटा अब हम, यस अन्वेषा। Sir, yesterday I have a doubt. I am not understand sericulture. बेटा सेरिकल्चर का मतलब होता है सिल्क वॉर्म को पालना, फिर उनसे सिल्क बनवाना, ये पूरा तरीका उनका सेरिकल्चर बोलता है। जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, Yes, sir. एग्रीकल्चर में क्या होता है, क्रॉप्स को फिर ग्रो करना, हार्वेस्ट करना, ये सारी चीजें होती हैं एग्रीकल्चर में। बिल्कुल उसी तरीके से सेरिकल्चर होता है, ठीक है। द फीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ठीक है। कई सारे लोगों के डाउट्स रह गए थे, तो वो आज क्लियर कर लो तुम लोग, जो भी डाउट्स रह गए हैं तुम लोग के। समझ में आ गया बेटा सेरिकल्चर क्या होता है? Sir. ओके, ठीक है। यस सक्षम। सर जो सिल्कवॉर्म का लाइफ साइकिल होता है, प्यूपा और ककून, सर वो दोनों एक ही होती है? नहीं, वो दोनों अलग होती हैं। ककून होता है जो उसके ऊपर कवर चढ़ जाता है, उसको हम ककून बोलते हैं एक्चुअली में। और प्यूपा होता है वो स्टेज जिसमें वो अपने ऑर्गन्स को डेवलप करने लगता है धीरे धीरे। ओके सर। हाँ, एनीबॉडी एल्स जो जिसको कल प्रॉब्लम थी वो आज सॉल्व कर ले, क्योंकि उसमें कई सारे बच्चे थे जिनके हैंड रेज रह गए थे और मैं कर नहीं पाया था। हेलो, यस हंसिका। So I was saying that can you please tell again what is there in star stage? What is there in star stage? Yes, sir. आप यही पूछ रहे थे स्टार क्या होता है? Yes, sir. हेलो, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ बेटा, अभी रुक जाओ। Yes, sir. हाँ मैं बता रहा हूँ व्हाट इज इन स्टार।
अन्वेषा तुमको पता है इंस्टार क्या होता है? Yes, sir. बताओ क्या होता है इंस्टार? सर स्टार स्टेजेस होते हैं, मतलब पहले सबसे छोटा इंस्टार होता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार और फोर्थ इंस्टार कहते हैं, जब तक वो सिल्कवॉर्म अपना फेजेस ककून। को बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही। उन फेजेस को हम लोग इंस्टार बोलते हैं, ठीक है हंसिका? जैसे अगर लार्वा जो है वो छोटा है, फिर लार्वा से धीरे धीरे जब बड़ा होगा पहले इंस्टार में आएगा। जैसे हम लोग होते हैं ना 1 ईयर, 2 ईयर, सेकेंड ईयर, 3 ईयर, मतलब जो साल चेंज होते हैं ना, हम लोग भी तो डेवलप होते रहते हैं जिस तरीके से ह्यूमंस डेवलप होते हैं, उसी तरीके से लार्वा भी डेवलप होता है, ठीक है? तो वो सबसे पहले जाता है फर्स्ट इंस्टार में, फिर उसके बाद सेकंड में, उसके बाद थर्ड में, इस तरीके से वो बढ़ता है। तो इंस्टार बेसिकली क्या होता है? फेज बिटवीन द मोल्टिंग स्टेजेस। मोल्टिंग स्टेजेस का मतलब है चेंजिंग स्टेजेस। ओके सर। ठीक है? ओके सर। यस युवराज। चलो इंस्टार होता है वो साइंटिफिक नेम है? इसका जो इंस्टार होता है सर वो साइंटिफिक नेम है? बेटा वो साइंटिफिक नेम साइंस का ही नेम है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि बेटा वो स्टेज है, साइंटिफिक नेम नहीं है उसका। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक, सॉरी सिल्कवॉर्म का साइंटिफिक नेम नहीं है ये, सिर्फ एक स्टेज है, वो फेज है। समझ आ गई बात? हाँ सर समझ आ गया। यस हबीबा। सर मुझे ये पूछना था, जैसे जब बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल होती है सर, वो भी कोकून में रहती है कुछ टाइम के साथ, तो हम उसके कोकून को भी थ्रेड्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सिल्क सर वॉर्म वो से ही तो सिल्क जो थ्रेड्स निकलते हैं बेटा, जो सिल्क हर किसी के स्पेशल थोड़ी होते हैं। ऐसे तो मकड़ी का जाला भी होता है, वो भी तो एक तरीके का फाइबर है। क्या हम उसके कपड़े बनाते हैं? नो सर। वेब होता है, वेब इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइबर, वो भी तो एक थ्रेड लाइक फाइबर ही निकालते हैं, सीक्रेट करते हैं अपने, रिलीज करते हैं कि रिलीज की नहीं करते हैं। तो वी आर यूजिंग दैट वेब फॉर मेकिंग क्लोथ्स या फिर फॉर मेकिंग फैब्रिक, नो। नो सर। तो हम लोग कॉटन का यूज कर रहे हैं, सिल्क का यूज कर रहे हैं, तो हर चीज में एक स्पेशलिटी है, तब हम लोग उसका चीज का यूज कर रहे हैं। कल तुमने लग रहा है सही तरीके से देखी नहीं थी वीडियो, जो उसका एक एक थ्रेड होता है सिल्क का, वो स्टील से भी ज्यादा, स्टील के वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। कल मैंने जब वीडियो चलाई थी उसमें ये बताया भी था कि जो उसका वायर होता है या फिर जो स्टील का वायर होता है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है स्टील का थ्रेड, उसका सिल्क का थ्रेड। बताया था कि नहीं? यस सर। देखा था तुमने वीडियो में, या दिखाऊं दोबारा से? यू वांट टू सी अगेन? यस हबीबा। नो मैं सर। दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी दिखा दूंगा, तो थोड़ी देर में भी जरा क्वेरीज और ले लूँ एक दो की, ठीक है? यस लक्षिता। Sir, हेलो। यस sir, what is the scientific name of silkworm? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्कवॉर्म? Yes, sir. सिल्कवॉर्म का साइंटिफिक नेम मैं बताता हूँ बेटा अभी तुरंत तुम्हें। सिल्कवॉर्म का साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोरी। Sir, what? BOMBYX, BOMBYX, Okay, sir. BOMBYX MORI, स्पेस देखे, BOMBYX MORI, बॉम्बिक्स मोरी। Thank you, sir. और कुछ किसी को पूछना है? यस हबीबा, कुछ और दोबारा से प्रॉब्लम है? नो सर। ओके।
फतेह। सर हाँ सर मेरे को यान का मीनिंग पूछना है। क्या पूछना है? यान। यार्न क्या होता है ये पूछना है? यस सर। यार्न होता है धागा, थ्रेड। ओके सर। यार्न होता है धागा, और उससे भी छोटे छोटे धागे जिनसे वो यार्न बनता है, यानी जिनसे वो फाइनल थ्रेड बनता है, उसको हम फाइबर बोलते हैं। जो बहुत ही छोटे माइन्यूट थ्रेड्स होते हैं, टाइनी थ्रेड्स होते हैं, उनको हम फाइबर बोलते हैं। ओके सर। ठीक है। यस दिया। Sir, please tell the process of spinning. Sir? स्पिनिंग बताना है तुम्हें? स्पिनिंग स्पिनिंग। Yes, sir. Wait a minute, I am showing you one video. Just let me search, ताकि तुम लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब ऐसा कुछ चाह रहा हूँ कि शायद स्पिनिंग मुझे मिल जाए कहीं से, तो मैं देख लूंगा तो तुम्हें दिखा भी दूंगा। ठीक है। देखो मैं दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है। अभी अपनी शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, बस जस्ट वीडियो देखना। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की बात है, देख लेते हैं इसको। The exact origins of the cotton plant are unknown, although archaeologists जब have मैं स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ तो तुम लोग एनोटेट मत करने लग जाया करो। देखो इस पे रेड कलर की लाइन बन के आ रही है, अब तुम लोग को ये नहीं दिखेगा अगर मैं नहीं हटाऊंगा तो। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट अ गुड साइन। अभी मेरे कहने के बाद भी तुम लोग मतलब करे जा रहे हो इस पर। दिया, युवराज, अंतिका, सरबजीत सिंह, प्लीज डोंट डू। unearthed pieces of cotton cloth over 7,000 years old. Through the centuries, cotton fiber was traditionally processed by hand until the early 18th century, when the first automated processing machine was invented. Before cotton arrives at the textile mill to be spun into thread and woven into fabric, it makes the journey from field to bale. Cotton takes about 5 months to grow from a planted seed to a ripe plant. This harvesting machine, called a cotton picker, plucks fluffy seed cotton out of the plant's boll, leaving a trail of burrs and sticks behind. The machine empties the plucked cotton into a tractor-drawn buggy. This machine builds the seed cotton into a humongous rectangular block called a module. A truck transports the module to the processing plant, known as a cotton gin. Once the cotton arrives to the processing plant, sticks and burrs are removed, as well as any lingering debris and seeds. A truck dumps the module into a feeder, which moves the packed seed cotton into a dispenser. The ground seed cotton falls onto a conveyor belt which leads to the hot box. The hot box mixes the seed cotton with hot air, which allows the moisture to evaporate, making the seed cotton easier to clean. A machine called the wad buster breaks up the clumps of seed cotton by tossing it against a screen. Loose debris. तुम लोग को ये मशीन वाला सिस्टम भाई समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोग को मैं ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुम लोग, तुम्हारे क्या चल रहा है। अर्नव, फतेह, सिद्धार्थ, वॉरियाल,
बेटा जो मैं बोलता हूँ प्लीज कर दिया करो, ताकि मेरे को पता तो चले, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ना नहीं करो। पता है क्या नहीं समझ में आया? सबसे पहले कॉटन उन्होंने तोड़ी, उन्होंने कॉटन में से सीड निकाली, फिर उसके बाद वो कॉटन मशीन में डाली उन्होंने, ताकि उसमें से वो उस कॉटन को प्रोसेस कर पाए आगे के लिए। उसके अंदर से जितना भी वो है, क्या कहते हैं, मॉइस्चर है, उसको वो खत्म कर पाए। ये करा है उन्होंने उसमें, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं वो। उन्होंने क्या करा था, पूरी पूरी कॉटन को सीड के साथ एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बंद कर लिया। पैकिंग नहीं करते हैं हम लोग, किसी भी चीज की पैकिंग करी उन्होंने, पूरे पूरे कॉटन की पैकिंग कर ली एक बड़े बड़े रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में, यानी क्यूबॉइड्स में उन्होंने पैकिंग कर ली। ठीक, तो अब क्यूबॉइड्स में पैकिंग करने के बाद क्या किया उन्होंने, उस क्यूबॉइड्स को वहीं फैक्ट्रीज में लेके गए, ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो गए। वो फैक्ट्री में लेके जाने के बाद उनका गिनिंग प्रोसेस हुआ, जिसमें गिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, सीड्स निकाल दी जाती हैं कॉटन फाइबर में से। ठीक, उसमें दिखाई भी गई थी, तुम लोग को वीडियो में दिखाया भी था कि सीड्स निकाली हुई हैं उसमें। यस अन्वेषा, समझ में आ रहा है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप एवरीवन इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, एंड जस्ट प्लीज गिव मी अ थम्स अप। Okay, very good. Falls through the screen openings down a narrow chute. Then the seed cotton moves through a machine called the steady flow, which divides it equally between two processing lines. ये हमारी ना कॉटन को प्रोसेस करने का तरीका होता है कि कॉटन के फाइबर बिल्कुल फ्रेश हमारे निकले। कई जगहों से निकलना पड़ता है कॉटन के फाइबर को, एकदम ऐसा नहीं है कि गिनिंग के बाद ही तुरंत यार्न बना दिए जाए। गिनिंग के बाद भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, कई बार कई सारा मॉइस्चर कॉटन के अंदर होता है, तो उस मॉइस्चर को निकालना पड़ता है ताकि कॉटन जो है हमारी सूख जाए। ठीक है, तो उस मॉइस्चर को निकालने के लिए भी काफी सारे प्रोसेस होते हैं। फिर उसमें से और भी जो चीजें होती हैं, जो डस्ट होती है, उसको साफ करा जाता है, फिर उसको दोबारा से करा जाता है। तो सिंपल एक प्रोसेस नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है। तो वो पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। On each line, the seed cotton enters a burr machine, which grabs the seed cotton with a circular saw and swings it against metal bars. The centrifugal force shakes off the heavier debris. The seed cotton exits the machine through one pipe and the debris through another. A large auger transfers the debris to a waste chute. ये गिनिंग प्रोसेस चल रहा था इतना लंबा, थोड़ा देख रहे हो, ये सीड्स निकाली जा रही हैं, इसकी सीड्स हैं ये कॉटन की। And out of the plant. The seed cotton is ready for the final stage of processing. A network of pipes feeds a row of machines called gin stands. The gin stand separates the seed from the fluffy stuff called the lint. Inside each stand are 116 circular saws, which are arranged horizontally, each separated by a steel rib. The saw teeth grab the seed cotton and pull the lint through the narrow gap between saw and rib. यस दिया, हेलो, Sir, हाँ, यस पूछो। sir, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बेटा मेरे को। सर इसमें तो खाली मतलब कॉटन, अभी सर वीडियो इसमें पूरी हो गई कॉटन का ही प्रोसेस दिखाया है, तो बेटा स्पिनिंग और किसकी होती है? खाली कॉटन। यस सर। स्पिनिंग और किसकी होती है बेटा? सर स्पिनिंग तो कॉटन की होती है। तो ये कॉटन का जो प्रोसेस दिखाऊंगा तो मैं और किसका दिखाऊंगा बताओ? सर स्पिनिंग तो समझ आ गया, वैसे मतलब नायलॉन का भी यही प्रोसेस होता है। बेटा नायलॉन अलग चीज है, तुम लोग मतलब अपने कंसेप्ट से क्यों भटक रहे हो?
कंसेप्ट से नहीं अपने भटकना है। ये मतलब दिमाग में कहाँ से आता है ये सारी चीजें? आपको अपने कंसेप्ट पर टिके रहना है। जब आप कंसेप्ट पर टिके रहोगे, अभी मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, कॉटन बता रहा हूँ ना, तो अभी कॉटन के ऊपर ध्यान दो। अभी तक मैंने नाइलॉन बताया ही नहीं है। अभी तक हम लोग नेचुरल फाइबर पे हैं, सिंथेटिक फाइबर पे आए हैं अभी हम। नो सर। तो अभी आपने मेरे से पूछा सर स्पिनिंग बता दीजिए, तो मैं स्पिनिंग के लिए तुम लोग को दिखाने लगा। ठीक है, अभी आप मुझे मेरे से कह रहे हो सर मेरे को स्पिनिंग आती है। अब सर मुझे बताओ नायलॉन का कैसे करते हैं? सर स्पिनिंग तो वीडियो देख के समझ आ गई। इसमें अभी तक स्पिनिंग आई नहीं है। सर तो उसका वो होता है, सीड होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। नहीं सर, उसका नाम क्या है? किसका नाम? सर मैं लिख के भेज रहा हूँ, उसका क्या नाम है? सीड का नाम क्या है, सीड का? बेटा कॉटन सीड ही होती है बेटा, उसका नाम एक्चुअल में क्या क्या होगा नाम? और ओके सर। यस अश्विन। सर हेलो? एक बार जो कल हाँ पूछो। सर कल जो आपने वीडियो दिखाई उसका लिंक भेज दीजिए। कल जो मैंने वीडियो दिखाई थी, कल तो मैंने कौन सी वीडियो दिखाई थी? कल सिल्क की दिखाई थी कल मैंने। हाँ सर वो सिल्क वॉर्म वाली, हाँ हाँ, वो भेज दीजिएगा उसका लिंक मैं प्लीज। बेटा दोबारा भी दिखा दूंगा तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्लास में दोबारा से चला दूंगा, ठीक है? लेकिन ओके अभी नहीं चलाऊंगा, फिर कभी और डाउट क्लास होगी इसके बाद तब बताऊंगा। ओके, ठीक है? थैंक यू सर। यस बेटा। यस युवराज। सर वो हॉट बॉक्स में क्या हुआ था? हॉट बॉक्स में समझा नहीं, कब बोला था उसने हॉट बॉक्स? सर अभी पहले बोला था hot box। तो मैं भी तो यही बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे लिए, कि बेटा जब मॉइस्चर होता है, कई सारे फ्लावर्स में उसके मॉइस्चर होता है, ठीक है? तो उस मॉइस्चर को कम करने के लिए कॉटन को सुखाते हैं। कैसे सुखाते हैं? उससे गर्म करते हैं, उसको टेम्परेचर में लगाते हैं ताकि उसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। आई बात समझ में युवराज? हाँ सर आ गई, थैंक यू सर। यस अन्वेषा। सर जो सीड मतलब वो लोग निकाल देते हैं तो उसको वो प्लांट मतलब उसमें वो प्लांट उगा देते हैं या फिर फेंक देते हैं? हो सकता है प्लांट के लिए यूज कर लें, फेंकेंगे क्यों? देखो अगर उनकी कोई काम की चीज है, अगर वो काम की चीज है तो काम की चीज भाई साहब वो नहीं फेंकते हैं बिल्कुल, ओके सर। ठीक है? तो इट विल बी यूज्ड फॉर मेनी प्रोसेस। अगर कॉटन की सीड खरीदनी हो तो वो मिल जाती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आपकी वीट की और बाकी सारी चीजों की सीड्स मिल जाती हैं, वो उसकी भी मिल जाती है सीड्स। ओके सर। यस हबीबा। सर मुझे ये पूछना था, जैसे सर कॉटन एक फाइबर होता है ना सर, तो हम उसे क्या कहते हैं? जैसे कभी हम कॉटन डिप करते हैं, उसके ऊपर सीड्स रख देते हैं सर, तो उसके ऊपर प्लांट ग्रो करने लग जाता है सर, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसके ऊपर प्लांट ग्रो करने लग जाता है? यस सर। कॉटन के ऊपर प्लांट ग्रो करने लग जाता है? नो सर, अगर हम मतलब क्या कहते हैं उसे वाटर में डिप करते हैं और फिर क्या कहते हैं सनलाइट में रखते हैं और उसके ऊपर कॉटन को? सीड्स डालते हैं। कॉटन को? यस हेलो सर। यस सर। बेटा, क्या आपने मनी प्लांट जानते हो? मनी प्लांट क्या होता है? हेलो? वैसे ये कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। मैं हर बार यही कहता हूँ कि अपने कंसेप्ट पर टिके रहो, इधर उधर मत भागो, मेन पॉइंट पर रहो कि पॉइंट क्या चल रहा है, ठीक? मनी प्लांट देखा है क्या होता है? यस सर। क्या वो बॉटल में
सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ ग्रो कर सकता है या नहीं? सिर्फ पानी के साथ तो नहीं। क्यों नहीं कर सकता? तुमने अभी आज तक कभी ट्राई नहीं करा है ना। कभी ट्राई करना, सिर्फ ग्लास की बॉटल में या फिर कांच में या फिर किसी भी चीज में सिर्फ पानी में मनी प्लांट की एक टहनी डाल देना और कुछ दिन देखना प्रॉपर तरीके से ग्रो करता है पानी के अंदर मनी प्लांट। ठीक है, तो अगर सीड की हम बात करें तो अगर हम कॉटन के ऊपर, भीगी हुई कॉटन के ऊपर सीड रख देते हैं तो कॉटन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत देर तक पानी को अपने अंदर सोख के रखती है। यस सर। तो सीड के लिए जितना भी अमाउंट वाटर का चाहिए होता है फॉर द ग्रोथ, तो वो उसे कॉटन से धीरे 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 मिलता रहता है। इस वजह से सीड ग्रो कर जाती है। समझ आई बात? ओके सर। यस सर तो फिर प्लांट को सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती? बेटा, सॉइल की जरूरत कुछ प्लांट्स को पड़ती है, कुछ को नहीं पड़ती। अब जरूरी थोड़ी है पूरा पूरा कॉटन में ही डाल के रखोगे उसे। कॉटन के लिए हमने ये बताया है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कई सारे स्टेम्स वो होते हैं हमारे, कई सारे प्लांट पार्ट्स होते हैं जो कि पानी की मदद से ग्रो कर जाते हैं। सीड्स को जर्मिनेट करने में हो जाता है, हेल्प हो जाती है। सीड्स जर्मिनेट हो सकती हैं लेकिन पूरा प्लांट नहीं कर सकते हम। सॉइल की जरूरत होती है हर जगह। ठीक है, अब ये थोड़ी करेंगे कि हम हर एक पॉट में, हर एक गमलों में कॉटन कॉटन भर दें और फिर प्लांट को उगाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सॉइल इज नीडेड, दैट इज ओनली फॉर सम टाइप ऑफ सीड्स जो कि बिना सॉइल के पानी में जर्मिनेट हो सकती हैं, वो हो सकता है उसके साथ। ठीक है, हेलो, समझ में आई बात? हाँ, ये कर सकते हैं हम उसमें, लेकिन ये नहीं कर सकते कि प्रॉपर कॉटन में हम लोग ग्रो करवा दें उसे। ठीक है, ओके सर। yes, now I'm going to start again. The seeds are too large to pass through, so it spins in front of the rib, then drops into a conveyor. The lint goes into a flue which leads to the packing area. Cottonseed is sold as livestock feed, particularly for dairy cows. It contains cotton seeds used for selling the seeds for growing new plants. ठीक है, 23% protein, 20% fat, and 25% fiber. Cottonseed is also milled into cottonseed oil, a cooking oil that's a common ingredient in salad dressings and mayonnaise. The cotton lint is now ready to be formed into bales. Pipes feed the loose lint to the press area. When it arrives, a pusher moves the lint into a machine called the tramper, which shoves it down into a bale-shaped box. Once the box reaches 500 pounds of cotton lint, a press compacts the lint. इस तरीके से प्रेस कर दिया जाता है पूरी कॉटन को, and tie wraps the bale. कर दिया जाता है। Next, a conveyor moves each side. While the bale slides into a protective plastic bag, the grippers deposit the bale with an ID number. Then it's the sample to cleanliness, color, and other criteria. Once the analysis is complete. ठीक है, तो ये थी कॉटन की प्रोसेसिंग। अब बताओ किस किस को नहीं समझ में आई, ये बता दो मेरे को। अगर जिसको नहीं समझ में आई है तो जस्ट क्लिक ऑन यस। जिसको समझ में आ गई है क्लिक ऑन यस, और जिसको नहीं समझ में आई है क्लिक ऑन नो। कॉटन प्रोसेसिंग समझ में आ गई है तो जस्ट क्लिक ऑन यस, और नहीं आई है तो जस्ट क्लिक ऑन नो।
ठीक है, तो वेरी गुड बेटा। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आया है कि यस कैसे करना है, नो कैसे करना है, जिसमें कि अभिजीत सिंह बेदी, ये तो यहाँ पर हैं भी या नहीं कुछ पता नहीं है। अभिजीत, हेलो, प्लीज रेज योर हैंड। अभिजीत, हेलो अभिजीत, आर यू देयर? Yes. प्लीज Yes. कम ऑन वीडियो अभिजीत। Okay, sir. सर वो स्टार नहीं पहनी सर, 5 मिनट्स सर स्टार पहन के आ रहा हूँ। दस्तार पहन के आ रहे हो? माय लेक्चर इज गोइंग टू ओवर बेटा, देयर आर 2 मिनट्स आर रिमेनिंग बस। तो अब किसी की कोई प्रॉब्लम है? देखो आज का पूरा लेक्चर कॉटन में चला गया, फिर हम कल दोबारा से हो सकता है। अब किसी की क्वेरी हो तो मेरे पास भाई कल ही बताना, कल सुनेंगे सबकी क्वेरीज। और अभी टाइम हो गया है मेरे भी जाने का, एंड तुम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट करो। 20 मिनट का टाइम मिला हुआ है, ये रिसेस की तरह यूज कर सकते हो तुम लोग, जैसे स्कूल में रिसेस मिलता है। ठीक है, तो जस्ट यूज दिस एज रिसेस। यस भरतवीर, सर एक बार आप वीडियो भेज दोगे फिर से? कौन सी? सर जो कौन अभी सी दिखा वीडियो रहे थे भेजनी? आप कॉटन के प्रोसेस वाली। बेटा मैं कल दोबारा से दिखा दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, हाँ तो क्लास, नाउ आई एम गोइंग, जस्ट बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। कल हम लोग हो सकता है झूठ पढ़ पाए आगे हम लोग। कल मैं झूठ पढ़ाऊंगा तुम लोग के लिए, तो झूठ समझेंगे, झूठ कैसे होता है, झूठ को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। ठीक है, झूठ के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग ने पढ़ा था फिर से कॉटन के बारे में। मैंने कॉटन की आपको प्रोसेसिंग भी दिखाई कि किस तरीके से प्रोसेस करी जाती है, किस तरीके से उसमें से सीड्स निकाली जाती हैं। तो ये सारी चीजें हो सकता है मैं कल दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा मतलब एक समराइज कर दूंगा, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही छोटा सा पार्ट। और कल फाइनली हम लोग झूठ पढ़ेंगे, ठीक है, कि झूठ किस तरीके से प्रोसेस होती है। सो आई एम लीविंग नाउ, बाय बाय एंड टेक केयर।